عوام ہو جائیں ہوشیار کیونکہ وفاق ایک بار پھر گیس بم گرانے کو تیار ہے۔ نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے کم از کم بل 1541 روپے مقرر کرنے کا فیصلہ، جبکہ ٹیکس الگ سے بلوں میں شامل کیے جائیں گے۔ گیس صارفین ہو جائیں ہوشیار، وفاق ایک بار پھر گیس بم گرانے کو ہے تیار۔ اس بار نشانہ بنیں گے نان پروٹیکٹڈ صارفین۔ کم از کم بل 1541 روپے ہوگا، جبکہ ٹیکسز الگ سے بلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پروٹیکٹڈ صارفین کو 6 ماہ تک اشاریہ 9 HM³ تک گیس استعمال کرنا ہوگی۔ بصورت دیگر نان پروٹیکٹڈ صارفین نان پروٹیکٹڈ ٹیرف لاگو ہو جائے گا۔ مذکورہ گیس کی قیمت میٹر، رینٹ اور فکس چارجز کی بنیاد پر مقرر ہوگی۔ اشاریہ 6 HM³ گیس استعمال کرنے پر بل 1251 سے بڑھا کر 2445 کیا جائے گا۔ 1 ہیکٹا میٹر کیوب گیس استعمال کرنے پر بل 2053 سے بڑھا کر 4499 کیا جائے گا۔ 1.5 HM³ پر قیمت 3608 سے بڑھا کر 8127 روپے ہونے کا امکان ہے۔ 2 HM³ گیس استعمال کرنے پر بل 6200 سے بڑھا کر 13616 روپے ہو جائے گا۔ 3 ہیکٹا میٹر کیوب گیس استعمال کرنے پر بل 12446 سے بڑھا کر 29164 تک پہنچ جائے گا۔ 4 ہیکٹا میٹر کیوب گیس استعمال کرنے والوں کا بل 23475 سے بڑھا کر 56373 روپے ہو جائے گا۔ 4 HM³ سے زائد گیس استعمال کرنے پر قیمت 41830 سے بڑھا کر 71499 روپے ہو جائے گی۔ 1 ماہ میں زیادہ گیس استعمال کرنے پر نان پروٹیکٹڈ ٹیرف لاگو کر دیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں، ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں چینی اور گھی کی قیمتیں ایک بار پھر سر اٹھانے لگی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں 100 کلو گرام چینی کا ریٹ 12200 سے بڑھ کر 13300 روپے کا ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں چینی اور گھی کی قیمتیں بڑھنے لگی ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے فراز رمضان سے۔ فراز بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں موجود ہوں۔ بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ چینی اور جو گھی ہے ان کی قیمتیں ایک دفعہ پھر سے سر اٹھانے لگی ہیں۔ ایک دن میں چینی کے 100 کلو گرام ریٹ میں جو ہے وہ 1100 روپے کا اضافہ دیکھنے میں ملا ہے۔ کل صبح کے اوقات میں چینی کے 100 کلو گرام کا ریٹ جو ہے وہ 12200 ہو گیا تھا، جبکہ رات کے اوقات میں چینی کے 100 کلو گرام کا ریٹ جو ہے وہ 12800 روپے ہو چکا تھا، جبکہ آج کی اگر بات کرتے چلیں تو آج چینی کا جو ہے 100 کلو گرام کا ریٹ جو ہے وہ 13300 روپے کلو جو ہے وہ ہو گیا۔ اگر اسی کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تو ہول سیل مارکیٹ میں چینی 133 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ بات کرنے کے لیے غلہ منڈی کے ضلع ملتان کے کنویر حاجی راجہ مدثر قریشی ہمارے ہمراہ موجود ہیں، سے جانتے ہیں جو مہنگائی کا دوبارہ طوفان آ رہا ہے، انتظامیہ خاموش ہو چکی ہے۔ آرمی چیف صاحب نے ایکشن لیا تھا، جس کی وجہ سے ہر چیز آدھی قیمتوں پہ آ چکی تھی۔ جو چینی 22,000 روپے کی بوری تھی وہ 11,000 روپے کی بوری ہو گئی تھی۔ جو گھی 600 روپے کلو بک رہا تھا وہ 300 روپے کلو ہو چکا تھا۔ اسی ہفتے میں ان 2-3 دنوں میں کل چینی 12,200 روپے غلہ منڈی میں ریٹ تھا، جو آج 13,300 روپے ہے۔ اور گھی جو 305 روپے کلو تھا، کراچی برانڈ، لوکل برانڈ، اچھے برانڈ 350 روپے کلو تھے، جو اچھے برانڈ آج مارکیٹ میں 410-20 روپے کلو بک رہے ہیں، اور لوکل برانڈ کراچی برانڈ وہ 350 روپے کلو بک رہے ہیں۔ لہٰذا یہ مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے۔ آرمی چیف صاحب، آپ 2 مہینے پہلے کے حالات دیکھیں، جب نگران حکومت آئی تھی لوگ سڑکوں پہ آ رہے تھے، لوگوں نے احتجاج پورے پاکستان میں شروع ہو چکے تھے، وہ مہنگائی کی وجہ سے شروع ہوئے تھے۔ آپ نے ایکشن لیا، مافیا کے اوپر ڈنڈا اٹھایا، وہ ڈنڈا اٹھانے کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں سکھ چین کی روٹی کھانے لگے تھے۔ آٹا بھی کم ریٹ پہ ہو گیا تھا، گھی بھی، چاول بھی، دالیں بھی، سب چیزوں کے ریٹ مناسب ریٹ ہو چکے تھے، آدھ ریٹ ہو چکے تھے، اور اب دوبارہ یہ مافیا نے اپنے دوبارہ پنجے گاڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہے وہ پراپر چیک اینڈ بیلنس کریں، تاکہ چیزوں کے جو ریٹ بڑھ رہے ہیں ان کو فوری طور پر قابو پایا جا سکے اور یہ یہیں پر رک جائے۔ جی فراز آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان میں اسموک کا راج برقرار، نیلا آسماں دھوئیں کی لپٹ میں آ گیا۔ ملتان صفائی کمپنی اسموک کے تدارک کے لیے متحرک ہو گئی۔ اسموک بن گیا روگ، پاکستان بھر کی طرح ملتان شہر میں بھی اسموک کا راج، نیلا آسمان دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا۔ ملتان 255 پوائنٹس کے ساتھ ملک کا تیسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر ملتان صفائی کمپنی متحرک ہو گئی۔ ترجمان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بتایا ہے کہ اسموک کے حوالے سے ملتان میں پیچیدہ صورتحال ہے۔ کوڑا کرکٹ جلانے والوں اور کنسٹرکشن سائٹ پر ملبہ پھینکنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی آ گئی ہے۔
मुल्तान जो है इस वक्त जो है समूह के हवाले से क्रिटिकल पोजीशन पर है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर साहब की हिदायत पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने खुसूसी इक़दामात का आगाज़ किया है, जिसमें हमने आज जो है वो कूड़ा करकट जलाने और मलबा जात जो है जो मिट्टी हैं उनकी ट्रालियों के हवाले से भी हमने आज खुसूसी क्रैकडाउन किया है ताकि समूह को रोका जाए। जबकि रोज़ाना अली सुबह जो तमाम शाहराहों पर 2 शिफ्टों में छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि जो है गर्दो गुबार जो है उस पर काबू पाया जाए। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि बच्चे और बुजुर्ग गैर जरूरी घरों से ना निकलें, बसूरत दीगर सर और मुंह को ढांप लें। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सलमान जबीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में गैस्ट्रो मुतासरीन की तादाद बढ़ने लगी। 24 घंटों में 132 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हुए, जबकि डॉक्टरों ने नाकिस ग़िज़ा और आलूदा पानी को गैस्ट्रो की बड़ी वजह करार दे दी। नाकिस ग़िज़ा और साफ पानी की किल्लत शहरोलिया की बासियों पर भारी पड़ गई। गैस्ट्रो का शिकार सैकड़ों मुतासरीन मुख्तलिफ अस्पतालों में जा पहुंचे। डॉक्टरों का कहना है कि बाजारी अशिया और साफ पानी की अदम फराहमी गैस्ट्रो की बड़ी वजह है। शहरी पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है मैदे की बीमारी है, जिसके अंदर मैदे के अंदर सोजिश या इन्फेक्शन हो जाती है। गैस्ट्रो जो सबसे ज़्यादा फैलता है वो बाहर के खानों जिसमें मक्खियाँ आ जाएं या कोई वायरस इन्फेक्शन की वजह से भी आ सकता है। आजकल गैस्ट्रो की बीमारी की जो अलामात हैं वो ये हैं कि उसमें डायरिया, मोशन, पेट में दर्द, उल्टी मतली। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नेशनल अस्पताल में गैस्ट्रो के 27 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में 45, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 23 और टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 29 मरीज रिपोर्ट हुए। डॉक्टरों का कहना है कि मुतासरा शहरी फौरी अस्पताल पहुंचे। गैस्ट्रो से बचा इस तरह से जा सकता है कि आप लोग अपने तो बिल्कुल साफ़ खाना इस्तेमाल कीजिए, जो खाना एक्सपोज है उससे बचें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, जितना ज़्यादा पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, नमकियात, ORS वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल तब बनती है जब गैस्ट्रोएंटराइटिस की सूरत में लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है। डॉक्टरों का मजीद कहना है कि गैस्ट्रो से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और साफ ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। कैमरामैन राना बिलाल के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। अहमदपुर शर्किया में डॉक्टरों की लापरवाही एक शख्स की जान ले गई। अजीज अस्पताल में दौरान ऑपरेशन नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। मरहूम के वर्सा और शहरी चौक मुनीर शहीद पर सरापा एहतजाज। अजीज अस्पताल में दौरान ऑपरेशन नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। शहरियों ने चौक मुनीर शहीद पर शदीद एहतजाज किया। वर्सा ने बताया कि अजीज अस्पताल सेहत कार्ड प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से गरीब लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं और ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। मरहूम नौजवान आरिफ कंबोआ के वालिद मोहम्मद जमील का कहना था कि इनका बेटा तो वापस नहीं आएगा, इससे पहले कि मज़ीद देर हो जाए इंतज़ामिया फौरी नोटिस ले। मरहूम के वर्सा का कहना था कि अजीज अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। बेटा कुछ तकलीफ में था, इसकी अपना पिता की तकलीफ में गया, हम उसके पास गए, उसने कहा हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि कोई हमला उसके पास ऐसा नहीं था जो इसको डील कर सकता। उसने 40 बंदे पकड़ के जैसे जानवर को ज़िबा किया जाता है ऐसे करके इसको मौत के हवाले कर दिया। मरहूम के बेटे का कहना था कि इसके बाबा अपने पांव पर चलकर अस्पताल गए, वापसी पर देखने के काबिल नहीं थे। मेरे बाबा खुद अपने पैरों के ऊपर चल के गए हैं, वापस आए हैं तो ये हालत थी, ना देख सकते थे। ऐसे बेहोशी की हालत में उसे किया पड़ा था। डॉक्टर तारक ने उनका ये कत्ल किया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जैन अहमद भट्टी का कहना था कि इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज एक कंप्लेंट मौसूल हुई है अजीज हॉस्पिटल के अगेंस्ट, जिसमें 2 तारीख को जो है कोई जो है किरसानिया हुआ है। एक सहाफ़ी की जो है ऑपरेट के दौरान नागुशवार हालत हुई है, उसको भावलपुर रेफर किया गया है, वहाँ पर वो जो है वफात पा गए हैं। इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी इस मामले की। और मैं खुद भी आज गया हूँ, विजिट किया है। सेहत कार्ड पर था हॉस्पिटल, वो तो सेहत कार्ड से उसको सस्पेंड कर दिया गया है 3 तारीख से। बाकी ये मजीद कार्रवाई करेंगे और इसकी पूरी इंक्वायरी होगी। अजीज अस्पताल को सेहत कार्ड प्रोग्राम से सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी जानिब डॉक्टर तारिक अजीज मौकफ देने से इनकारी है। कैमरामैन महर नईम के साथ खादिम हुसैन सोमरो, रोही न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। अब आपको बताएं, भक्खर का पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। आवाम से तफरीह की सहूलियात छीन ली गई। बक्खर में डांडला पार्क खंडरात में तब्दील हो गया। आवाम से सस्ती तफरीह की सहूलियात छीन ली गई। पार्क में लगाए जाने वाले झूले, लाइट्स और बेंच टूट फूट का शिकार। ये एक फैमिली पार्क है, लाखों रुपए लगाकर इसको बनाया गया है, लेकिन ये अब बिल्कुल उजड़ चुका है। यहाँ मगरिब के बाद निशाई आ जाते हैं और यहाँ इसके सारी चीज़ें उखाड़ कर ले गए हैं।
15 साल से कोई अमला, कोई चौकीदार, कोई इसका पुरसान हाल नहीं है। और ये फैमिली छोटे बच्चों का पार्क था जो अब करोड़ों रुपए से जो है ना ये ज़ाया कर रहे हैं गवर्नमेंट। हमारी गुजारिश है अरबाब इख्तियार से कि इससे जो है ना असर नौ तामीर करें, ताकि ये हम एक सस्ती और बेहतरीन तफरीह जो हमारे बच्चों के लिए थी वो हमसे छीन ली है, और यहाँ पर कोई आदमी एक दिन के लिए भी नहीं आता। पार्क की चार दीवारी से ईंटें, लोहा और कीमती सामान भी चोरी हो चुका है। पार्क में माली तो तैनात हैं, मगर वो ड्यूटी पर ही नहीं आते, जिसकी वजह से पार्क में घास की जगह जड़ी बूटियों ने ले ली है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर भक्कर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सफदर अब्बास के साथ असलम बलोच, रोही न्यूज, बखर। वापडा अहलकारों की लापरवाही, तलंबा में बिजली की लटकती तारें शहरियों के सरों पर मौत बनकर मंडलाने लगी। बड़े हादसा का खतरा हर वक्त मौजूद। तलंबा के छावनी मोहल्ला में बिजली की झूलती तारों ने खतरे की घंटी बजा दी। शहरियों के सरों पर मौत मंडलाने लगी। बड़े हादसे का खतरा हर वक्त मौजूद। मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आला हुकाम फौरी नोटिस लें। कैमरामैन उमर के साथ गुलाम हैदर, रोही न्यूज, मियां चिन्नू। कोटछुट्टा म्यूनिसिपल कमेटी ने जना कॉलोनी के मकीनों का दरीना मसला हल कर दिया। मेन डिस्पोजल से 3500 फुट तवील नाले की सफाई मुकम्मल कर ली। कोटछुट्टा म्यूनिसिपल कमेटी ने जिना कॉलोनी के मकीनों को गटरों के पानी से निजात दिला दी। कॉलोनी के मेन डिस्पोजल से निकासी आप के 3500 फीट नाले की सफाई मुकम्मल हो गई। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी जवादुल हसन गोंदल का कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने 22 दिन मुसलसल मेहनत करके नाले की सफाई मुकम्मल की। जिना कॉलोनी में आइंदा पानी जमा नहीं होगा। भुट्टा कॉलोनी और जिना कॉलोनी का जो डिस्पोजल है, इसका चूँकि पानी नाले के जरिए ये है हमारे इस कसी तक आता था, लेकिन जब से ये नाला बना है और ये नाला जो है ये पूरा सिल्टेड था, इसका पानी कभी भी एंड तक नहीं आया था जब से ये बना है। तो हमने अपना जो स्टाफ है उसको लगाया यहाँ पे। हमने तकरीबन 22 दिन तक हमारा स्टाफ काम करता रहा है और इसको हमने तमाम इसको डिसिल्ट किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी जो है ये वहाँ तक पहुँच जाएगा जो आगे हमारा छोटा मिनी डिस्पोजल बना हुआ है। सेवरेज और निकासी आप का देरीना मसला हल होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। उनका कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी के इक़दामात काबिले तहसीन हैं। पहले सारे था ना भुट्टा कॉलोनी, जना कॉलोनी मसला पानी खड़ती ना, नालियां बंदन, मेन होल चालू कहना। हुण अल्हम्दुलिल्लाह म्यूनिसिपल कमेटी कोटछुट्टा दी बहु मेहरबानी है, नालियां साफ थी गए, नाला वगैरह ही साफ कर दिते ने और निकासी साड़ी चालू थी गई, पहले को बेहतर थी गई। पहले से सारा गलियां पानी खड़ा रह में हुण माशाल्लाह गलियां साफ सुथरा रह में। हुण निज़ाम ठीक थी गया, पहले कने मेन होल भी चालू थी गया सारा कुछ। म्यूनिसिपल कमेटी का यानी कि बड़ा बड़ा शुक्रिया, मेहरबानी उन्हां दी। 3500 फीट तवील नाले की मुकम्मल सफाई पर चीफ ऑफिसर जवादुल हसन गोंदल ने अमले को नगद इनाम से नवाजा। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटछुट्टा। भावलनगर में दोहरे कत्ल को ट्रेस करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ के मुताबिक मोहल्ला ताजपुरा में एक घर से 2 लाशें बरामद हुई थी। घर से बदबू आने पर ताला तोड़कर अंदर पहुंचे तो देखा कि एक मर्द और खातून की लाश पड़ी है। गलने सड़ने की वजह से इनकी शनाख्त भी मुश्किल हो गई थी। जियो फेंसिंग की मदद से मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा भी इलेक्शन ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। सिर्फ रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा को ही ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा भी इलेक्शन ड्यूटियां देंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज इलेक्शन ड्यूटी के लिए डाटा बैंक बनाएंगी। सिर्फ रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा को ही ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के असातिज़ा को इलेक्शन ड्यूटियों पर नहीं लगाया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों की जानिब से रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करवाए गए रिकॉर्ड से डाटा बैंक तैयार किया जाएगा। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही जनूबी पंजाब की सियासत में हलचल मच गई। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और सदर अलीम खान का दौरा जनूबी पंजाब। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही जहांगीर तरीन के तैयारे ने उड़ान भर ली। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान की लोधरा आमद। अहम सियासी शख्सियात से मुलाकात। साबिक MP और पार्लिमानी सेक्रेटरी नजीर खान बलोच, अरशाद अब्बास, सैयद रजा शाह गिलानी, राना अरसलान, मलिक शाहनवाज भुट्टा, नदीम खान और चांद खान से सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया।
उस शरीफ में भी इस्तेकाम पार्टी मजीद मुस्तहक। साबिक MP मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आम इंतखाबात में तमाम पार्टियों को हिस्सा लेना चाहिए। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला माईशत है। मिल के मुल्क की जो भी मसाइल हैं उनका हल निकालें और उनको हल निकालने में मुल्क की अब मफाद में मईशत का ख़ास तौर पर ख्याल करके, क्योंकि मईशत जो है वो वाहिद चीज़ है जिससे गरीब आवाम की बेहतरी हो सकती है, जिनको नौकरियां मिल सकती हैं, जिनकी तनख्वाहें बढ़ सकती हैं। तो ये ज़रूरी है कि एक दफ़ा इलेक्शन आप कर लें, आपस में जो भी आपने करना है। जब एक दफ़ा इलेक्शन के बाद असेंबली में आ जाए फिर ज़रूरी है कि सब इकट्ठे होकर काम करें। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का कहना था कि मुल्क में माईशत के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए। इस्तेकाम में पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अवाम की खिदमत करेंगे। पार्टी में मजीद शख्सियात की शमूलियत के लिए सरप्राइज देंगे। सबसे बड़ा इशू अगर कोई पाकिस्तान का है तो वो हमारी इकॉनमी है, और हमें ऐसे ठोस इकदाम करने पड़ेंगे कि जो इकॉनमी है उसका सियासत के साथ कोई ताल्लुक ना हो। इकॉनमी जो है वो अपनी बुनियादों पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चले। सियासत में वज़ीर आज़म आते हैं चले जाते हैं, वज़ीर आला आते हैं चले जाते हैं। हमारी जो मईशत का पहिया वो नहीं रुकना चाहिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ और मरकजी सदर मौलाना तारिक जमील से उनके बेटे आसिम जमील की वफात पर अज़हार ताज़ियत के लिए तुलुम्बा भी गए। इस मौका पर उन्होंने मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए फातिह खानी और दुआ भी की। मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात के लिए ग्रेडिंग फार्मूला तय हो गया। उम्मीदवारों को अब कम से कम 40% मार्क्स लेना होंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहान के लिए ग्रेडिंग फार्मूला तय कर लिया गया है। उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स 40% मुकर्रर किए गए हैं। 40% से कम नंबर वाले बच्चों का 0 ग्रेड होगा और उन्हें फेल तस्वर किया जाएगा। ग्रेडिंग फार्मूला के तहत पहले मरहले में सिर्फ 9वीं और 11वीं जमात का इम्तिहान लिया जाएगा। ग्रेडिंग सिस्टम के तहत इम्तिहानात का आगाज साल 2024 से किया जाएगा। CGPA के 5 स्केल रखे जाएंगे। 95 से 100% नंबर्स पर 5 GPA मिलेगा और ग्रेड AA होगा। 90 से 94% नंबर्स पर 4.7 GPA मिलेगा और ग्रेड A+ होगा। 85 से 89% नंबर्स पर 4.3 GPA मिलेगा और ग्रेड A दिया जाएगा। 80 से 84% नंबर्स पर 4 GPA मिलेगा और ग्रेड BB+ होगा। 75 से 69% नंबर्स पर 3.7 GPA मिलेगा और ग्रेड B+ होगा। 70 से 74% नंबर्स पर 3.4 GPA और B ग्रेड मिलेगा। तालीमी बोर्ड्स के लिए ग्रेडिंग फार्मूला जारी कर दिया गया।